1 मिनट जब जैसे ही होगा मैं बोलूंगा, फिर सचिन शुरू कर देंगे। राजीव, आप सर को पहले प्रणाम कर लेना। सर प्रणाम सर, हम तो बस सर से प्रणाम कर लिए हम सुबह। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सर निरुपमा भी प्रणाम कर रही हैं आपको। अच्छी बात। सर आपकी स्टूडेंट हूँ मैं भी। अच्छा अच्छा अच्छा, अब लाइव है, चलिए शुरू कीजिए। Shall we start, sir? यस Hello. Okay. I, Dr. Sachin Tomar, on the behalf of organizing committee and on the behalf of all participants, I welcome Professor Girishwar Mishra in induction program. Professor Girishwar Mishra is the ex-vice chancellor of Mahatma Gandhi International Hindi University, Wardha, Gujarat. He was also the ex-HOD of the Department of Psychology, University of Delhi, and a renowned academician and a prolific writer and columnist. He was also the Dean for Research for Humanities and Social Sciences. Among his many achievements, Professor Mishra has served as President of National Academy of Psychology. He has also served as member of committee at National Council of Philosophical Research, Indian Council of Social Sciences Research, NCRT, subject and expert panel at UGC. His area of interest include social psychology, human development, cultural and indigenous psychology, self and affective processes. I welcome you, sir, in induction program, and it's our privilege to listen you. So once again, warm welcome from our side, sir. Over to Professor Girishwar Mishra, sir. Good morning to everybody. Today we are going to address some of the concerns in research in Indian context. I understand that within the sphere of higher education, research occupies a central position. It has relevance in connection with creation of knowledge and translating that knowledge in terms of procedures, technology, and products which may be useful to society. We understand that at postgraduate level, most of the disciplines have a specific course pertaining to research methods, and in practice we try to engage with research activities in numerous ways. We teach at postgraduate level. We conduct research in connection with various research projects. We also try to relate to take certain projects in which problems are given to us and we want to solve those problems. Now, the whole domain of research can be looked at in many ways. Some people think that, well, it is good to classify that in terms of basic research and applied research. Also, there is a category of methodological research. On the whole, the term research is very frequently used, and as a matter of fact, everybody who is in the area of academics tries to apply research method of one kind or the other, whether it is humanities, social sciences, or hardcore natural sciences. Research has become
an established component of our teaching and learning. This is one aspect of academic life. At the same time, the developments within research and preparation of students to pursue research, there is a very, difficult condition which is prevailing. I want to mention that because there is hue and cry about the quality of research, about relevance of research, about plagiarism in research, about utility of research. And it's very important to realize that if research is not following the standards, if research is not reliable and valid, then it is going to create problems at different levels. There are many stories which tell that people suffer, processes suffer, and inadequate research may lead to many disastrous consequences. It's hard time to create an ecology of research which respects scientific practices and which also promotes certain kinds of standards in the minds of people, and therefore it is very important that we try to acquaint ourselves with the developments in the theory of research or research methodology. In this context, I have chosen to focus on what is happening in terms of paradigm which is used in research. Today's deliberation in the induction course will focus on the concerns about paradigms in social sciences. The term paradigm is very critical in research process. It refers to the worldview. It refers to the way we try to organize our research activity. And it's a term which is very frequently used and used in many, many ways. Let me begin with one observation that there are many images of research. One image of research is that research is something which is very fixed and you have certain set procedures and you perform those things. We move across those various steps and you will ensure that you reach to the goal of research. Well, that is something like receipt. To my understanding, research is something which is very close to adventure, which relates to discovery, which relates to creativity, which relates to finding something new. Well, these are two different images.
And the kind of paradigm that you have will tell which image is being used. Let us come to the first slide. And I would like to share with you some of the key aspects that we are going to discuss in today's deliberation. I would like to begin with the changing scenario in research methodology, what is happening. I would like to emphasize that research is not something static. There are many new things which are happening, and it is important to update oneself. The second theme that I would like to take up in this presentation is about the different paradigmatic concerns. And third is two major perspectives which are there, the positivist and the post-positivist. We would like to see how they differ and what are their implications. Then I would like to focus on some aspects of qualitative methodology, and then finally we will examine the future perspectives. Well, the kind of research which is in practice, which is followed, and which has been taught for years, has a very set pattern, and its key features are indicated in this slide. The received view of research. It begins with a perspective which is actually positivist and empiricist in its orientation. And we begin with the assumption that research tries to build a theory, and that theory is based on observations. So the propositions are founded on data and facts. We collect data, and the data are based on observations. As an empiricist, we believe that whatever we gather in terms of observation is sufficient enough to provide hardcore facts. So it's a kind of inductive approach in which we collect data, we analyze that data, and on the basis of that, we develop theories. The second important feature of this approach is that, and it is very, very important, which is frequently used in our research process, that all those observations are related to certain hypotheses. And we test hypotheses against certain facts, which are related to observations. So, hypothesis or the suggested answer to the research problem that we have chosen is being tested against the facts. Third
and very crucial is theories are connected to observations through operational definitions. Well, the positivist view subscribes to correspondence theory of truth, that the reality that we observe, the external reality, and our concepts, our perceptions, both show a kind of one-to-one correspondence. And if we perform our observations adequately, then we will be able to describe and understand the reality effectively, reliably, and in a valid way. So theories are connected to observations through operational definitions. The term operational definitions, this phrase refers to a procedure to clarify a given construct or concept. So you can tell that this is the exact meaning of a particular concept. Operational definition is something which translates a concept in terms of certain activity, which can be observed, which can be noted. So the operational definition is given by the researcher, which clarifies the concept in terms of certain operations. So theories are connected to observations through operational definition. Then predictability is the test of theory, that a theory makes a certain prediction that if A happens, then B will happen. And if theory is able to show that, then the theory has the quality of predictability. And a good theory is one which offers such predictions adequately. Then there is another very important component in this whole exercise, that we try to establish some kind of causality. We try to establish causal relationship among certain variables. But what is causality? Here, causality has a very specific meaning. Causality simply refers that there is a contingent relationship, and that relationship is regular. That if A happens, then B happens. If that relationship is observed regularly, that if A is present, then B is present, and if A is absent, then B is absent, then this situation will tell that there is a regular contingent relationship between A and B. And that will establish causality. Then explanation and prediction are symmetrical. You make prediction that A influences B, and you make an explanation that what are the conditions in which A works, and what are those outcomes which take place when A works. So there is symmetry between the prediction and explanation. They go together. They correspond to each other. And finally, this whole perspective emphasizes on empirical realities, empirical regularities. Empirical means those which can be observed. Empirical means sense data, sensory data, our experience which is related to our own sensory organs,
Of course, they are also, enhanced with the help of certain instruments, but the empirical regularities, we don't go beyond the empirical regularities. That is what is beyond observation. If something is beyond observation, that will not be included. Now, these are the important features of the received view of research. The research which is generally conducted. And in this research process, we begin with a research problem. We get that problem from past research or through observation, or finding certain anomalies in past observations. So we have a query in our mind, and we want to answer that query. We want to answer the question, and for that purpose research is undertaken. And you begin the query by developing a kind of suggested answer which we term as hypothesis. So hypothesis is presented in terms of certain testable proposition, which can be related to certain variables. We can make observations with the help of those variables. We collect data with the help of those observations. We analyze that data and we see whether the data obtained goes along with the hypothesis or is contrary to that hypothesis, and that will provide a basis to reject the hypothesis or accept that hypothesis. That is the story of research. So you begin with a problem, hypothesis, data collection, analysis of that data, and then drawing conclusion about the validity of the hypothesis, whether it is accepted or not. And that's the end of research. You have answered the question. So this is the accepted practice. You are supposed to follow this kind of linear approach. एक सीधी रेखा में problem identification, hypothesis formulation, identification of variables, developing or getting appropriate measures of those variables, collecting data, relevant data, analyzing that data, using statistical methods, testing the hypothesis using those methods, and then looking at the results and interpreting the results, whether they support the hypothesis or fail to support the hypothesis. That is the story of research. Now, there is a change in this whole linear perspective of research. And there are many, many biases which are coming up. And those biases are challenging the positivist perspective on knowledge. In particular, the view that knowledge of social reality, which is considered as an external object, is questioned. Because reality itself cannot tell, which has been the grounding assumption of positivism. Reality as it exists is approached by a researcher, and a researcher is placed in society. A researcher is placed in a particular conceptual, theoretical, cultural context. Today we learn about Dalit perspective, we learn about
feminist perspective. We learned about deep ecology. There are different ways of looking at reality. So the idea of an impartial, neutral researcher is questionable. Nobody is like that. You always view reality from a particular position, and that position will color the view that you get. If you are positioned at a different point, you will observe something else. If you are positioned at a different point, the view of reality that you will get will be very different. So what you get in terms of reality will be determined by the position that you occupy. So a neutral observer is questioned. That's the major problem. And it is argued that one must recognize this. And there is no observer independent reality. An observer is key of that whole process. So reality is not what is externally present, because what is externally present is actually a kind of construction which is made possible by the view held by the researcher, the tools that he has, the conditions in which the observation is made, all those things are influencing the reality. So reality is not an independent version of reality. That's the major challenge which has come up, and this kind of critique has been, coming up from different quarters, and they have tried to create noise in the research process that is not linear. It's not so systematic. If you don't recognize this, then you lose many things. That's why there are different traditions of research. We will talk about that. So all that tells that, well, social sciences are in a state of flux. There is change. Contemporary social science is a large, multifaceted organism. If you consider social science as an organism, then it is multifaceted. It is not unidimensional. You have to appreciate the perspective of Dalit. You have to understand the perspective of ecologically awakened person. You have to realize the limitations which come from a feminist perspective. So, understanding social science will require a multi-dimensional approach, a multifaceted approach. And all these voices are challenging the mainstream. Is there one mainstream which is accepted? I'm a student of psychology. We have a cognitive perspective. We have a psychoanalytic perspective. We have a feminist perspective. We have a cultural psychologist perspective. We have a social psychological perspective. We have neurobiological perspective, and all of them are providing different pieces of information. They can't be considered as alternatives. They complement each other. So the social science is really a multifaceted organism. And as I have already indicated,
that empiricist position that the observational data is sufficient source of knowledge is not enough. Well, the whole process of knowledge creation has been looked at historically from different, using different metaphors. Like once upon a time, church was the metaphor, then the factory became a metaphor, and then now market has become the key metaphor for creation of knowledge, understanding of knowledge and all that. Well, now I will briefly examine the notions of science and paradigm. At the very outset, I introduced the term paradigm. You are familiar with that. And I will just remind you the significance of that in the whole discourse about research methods. Science is considered to be something which is highly reliable, valid process. And in today's vocabulary, if you want to convince somebody about your position, you have to bring in that, wow, scientists are saying this. This is the scientific view. Remember, once upon a time, the notion of dharma was very important. And religion was very important. The authority which was with religion is now with science. You see in advertisements and everywhere, you bring in science and then you claim for reliable, valid, dependable kind of knowledge or perspective. But that's not true, because scientists are also human beings. They also commit errors. And there are many ways of doing science, not one way. There is a whole debate about science in the subfield of philosophy called philosophy of science. I will not go into the details of that. But I would like to share here the point that if you look at the history of science, it is not linear. The whole scenario changes when Einstein comes. The Newtonian world is changed. The idea of relativity changes the whole perspective. The principles, laws, formulations don't work. I hope we are familiar with the work of Thomas Kuhn, who has written a lot about the historiography of science itself. And in his book on revolution in science, he identifies that there are different phases of development of science. There is one phase when there are many, many views, and there is a kind of confusion. There is no one perspective. And in the course of that, different views prevail. That is considered as a pre-paradigmatic stage. Then one paradigm becomes very powerful. And that paradigm solves various problems. And that paradigm tells how you do research. What is accepted as knowledge? What is not accepted as knowledge? All those things are determined by paradigm.
Those who are familiar with statistics, they must be knowing the significance of the word significance. So if the result is significant, then you are happy. If it is not significant, then you are not happy. Then it is put in waste paper basket. So it is significant at 0.01 level, 0.05 level, or 0.001 level. The probability values, they critically determine whether something will be considered as knowledge or not knowledge. That's a kind of paradigm. I have been actively engaged in editing an international journal of psychology, and I did that for about 15, 16 years. It was a very responsible job. And the rejection rate of articles was about 70%. So out of 100 submissions, only 30 were approved, accepted, and 70% were rejected on various grounds, on conceptual weakness, methodological weakness. But the important thing was whether it substantially contributes to knowledge or not. And the criteria is whether the finding is significant or not. That's the paradigm. So, pre-paradigmatic stage, then the science moves to a paradigmatic stage, a stage where a particular paradigm becomes dominant. And then sometimes people report different kind of findings. And if those findings which are different from the paradigm accumulate, then there will be a revolution in the paradigm. And then there will be new paradigm. So pre-paradigm, paradigm, and then new kind of paradigm. This is the kind of development in the progress of science. So science is not linear. You see, revolutionary science, normal science, and pre-science. You can find such things, and there are many interesting studies about that. When we use paradigm, paradigm includes actually these three things. One is ontology. That is what we mean by reality. What is the actual nature of the thing being observed? Like in physical world, you have gas, you have liquid. Now, similarly, when you talk about behavior, when you talk about social processes, what you really mean by that existing phenomena, where and in which form that reality exists. You can observe it in terms of concrete behaviors, activities, actions, neurophysiological processes, or chemicals in brain. How do you think about ontology of the phenomena? जो वस्तु जिस विषय का अध्ययन कर रहे हैं उसकी अस्तित्व की स्थिति किस प्रकार की है? That is ontology. Epistemology talks about what is the meaning of knowledge. When you will say that this is knowledge, how knowledge claim can be established? You will not categorize everything within the sphere of knowledge. So it's a theory of knowledge. And methodology is related to epistemology, how that knowledge can be attained. What are those methods? What are the difficulties? What are the procedures? All those things are discussed in the
framework of methodology. So a particular paradigm talks about ontology, epistemology, and methodology. For example, when you talk about psychoanalysis and you think about unconscious processes, ontology is different, epistemology is different, methodology is different. And when you observe social behavior, then ontology is different, epistemology is different, methodology is different. Paradigm refers to all these aspects. Then, I will also make a brief comment on the view of science. Well, nobody will say that physics, chemistry, and biology are not disciplines belonging to science. So you have a list of subjects which are considered as physical sciences or natural sciences. So you study physical objects. Depending on the quality of those objects is one way to look at science. And from that angle, social sciences will not be considered as science. The second view of science is science as a particular kind of methodology, which is called dynamic approach. So if you are following observations, statistical analysis, quantification, and that is accepted in physics, in chemistry, in psychology, in sociology, in economics, in all these subjects, in that sense, they are science. So it's not the nature of the object being studied, but it is the process of understanding, process of approaching the study that becomes the dynamic. And third is heuristic, that is problem solving. The approach to solve a problem. Science is which is very broad, follows different methods, and it is largely a process of problem solving. Now, if you look at the various perspectives, you will see that what is the criteria of, telling that something is considered as knowledge or justification of knowledge claims that yes, your observations are significant at 0.01 level. That is one way to justify the knowledge claim and establish regularity. That if it happens so many times, then you will be considered as one who knows it. Fine. You have, it's quite old idea that those beliefs which can be justified, they are considered as knowledge. And those which cannot be justified are not considered as knowledge. And that justification comes from data, from analysis, and showing the regularity in the observed, in observations. So in that way, you establish the reality status of various propositions. So science and paradigm are very critical to any kind of research process. Here in this slide, I have tried to summarize two major approaches which are followed
in understanding reality, in approaching reality, in establishing knowledge claims. And I would like to share with you that please do enjoy this slide, engage with this slide, because it summarizes the whole discussion about positivism and what alternatives are coming up. They are clubbed together as post-positivist. Let us come to see what they mean and what are the implications of that for knowledge. The positivist view, the empiricist view, which believes in independent external reality and science as a process of observation, a neutral observation, understanding the reality through observation is the framework. So the major goal of positivist inquiry is to control the phenomena and to make prediction. This word control is very, very critical, very, very important. When you control, then you are able to create things, then you are able to create changes in those things. That is the meaning of control. And control also implies some kind of power relationship. Control actually means that you are able to influence. Power, control, influence, they go together. Francis Bacon shared that the purpose of knowledge is to control. Knowledge is power. So the positivist view goes with this, controlling and predicting that under which condition, which thing is going to take place. Now, control and prediction are very attractive goals, and as a scientist, we subscribe to them. And in physical sciences, we see the progress. We make very point prediction. आप यहाँ से रॉकेट भेजते हैं, मिसाइल दागते हैं और वो ठीक जगह पे पहुंच जाता है. It's a point prediction. You utilize this. So in the physical world, control and prediction works very well. But in social life, there is doubt whether full control and prediction is possible or not. And in your political life, in social life, in personal life, you can see how control and prediction work. Contrary to that, the idea that the external reality is a kind of a myth, independent external reality is a myth. Reality is constructed. And then the goal is to understand that reality, to describe that reality. The emphasis is on capturing the reality as it exists. Of course, from the position where you are standing or sitting. From that perspective, you try to capture the reality as it occurs. The second feature of positivism is that reality is stable. It doesn't change. And it is pre-existing because it is not dependent on the observer.
It is present before the observer and it will be there after the observer is gone, and it is also present when the observer is present. Because reality is independent of the observer. You observe some physical phenomenon, you have some physical object or a chemical. So the chemical will not change if you leave the room. You are present in the room, still the chemical is same. But as we find in particle physics, quantum physics, when you study atoms, there it has been observed that observation also influences the observation. The process of observation influences the process of observation. And in case of human beings, that's very true. If you observe somebody's behavior, the behavior will not remain the same. It may change. It often changes. So the situation is not stable. And it is observer dependent. So the meaning of situation, definition of situation is fluid. How you conceptualize, how you are viewing, how you are approaching the reality, all that will determine the situation. So the reality is not stable and pre-existing. The reality is constructed by the observer. You are also contributing to the creation of that reality. So the nature of reality will change. The third important feature is the positive view is. Sir, मिश्रा सर. Yes. सर थोड़ा बहुत बीच में हिंदी का भी प्रयोग कर दीजिए, क्योंकि कुछ शिक्षक टीचर हिंदी के भी हैं सर, तो मैसेज कर रहे हैं कि कहीं कहीं सर बीच में थोड़ा हिंदी आ जाएगा तो उनके लिए भी अच्छा हो जाएगा सर. अरे आप कहिए तो हम पूरा हिंदी कर रहे हैं. हमें नहीं सर पूरा हिंदी में नहीं, थोड़ा बहुत हिंदी में. आप जैसा निर्देश दीजिए आप. नहीं सर, वो थोड़ा सा मैसेज आ रहा है कि एक दो मतलब बीच बीच में कहीं हिंदी का भी प्रयोग हो जाएगा सर ना, तो अति सुंदर, अति सुंदर. हाँ, बीच बीच में कहीं, पूरा हिंदी में नहीं. जरूर. जी सर, ठीक है. सॉरी सर, सॉरी डिस्टर्ब किया बीच. नहीं कोई बात नहीं. The understanding which we get in the positivist view, पॉजिटिविस्ट की हिंदी होती है विधेयवादी. तो जो विधेयवादी दृष्टि है वह संदर्भ से मुक्त अध्ययन की बात करती है, क्योंकि संदर्भ नहीं महत्वपूर्ण है. जैसे फिगर और ग्राउंड होती है ना, चित्र और उसकी पृष्ठभूमि, तो पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण है कि नहीं. यहाँ पर केवल चित्र देखते हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री. बट इन पोस्ट पॉजिटिविस्ट व्यू reality is something which can be grasped only in context. अर्थात बड़े साधारण शब्दों में अगर आप कहिए कि कौन कहाँ पर क्या कह रहा है, उसके कहने का अर्थ एक व्यक्ति की उपस्थिति में कुछ होगा, दूसरे व्यक्ति की उपस्थिति में उसके कहने का कुछ अर्थ होगा. उसके वाक्य का अर्थ जो है कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा किस संदर्भ में. आप आजकल अखबारों में और वैसे भी नेताजी लोग कहते हैं कि आप हमारी बात को गलत संदर्भ में देख रहे हैं, तो वो कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट अंडरस्टैंडिंग की बात है. So the post-positivist favors the context-dependent view, that you need to understand the context also. Reality is not independent of the context. It is not context-free.
because there will always be some kind of context within which you are studying a phenomenon, where you are studying something in one context or in the other context. Then I will come to the next aspect. The positivist is more interested, social scientists are familiar with this term, variables. ये बड़ा जबरदस्त एक शब्द है वेरिएबल, कि आपके रिसर्च में कौन कौन से वेरिएबल है, कौन कौन से तत्व हैं जिनको कि आप देख रहे हैं, और उन वेरिएबल्स को पहचानना, पकड़ना, ये महत्वपूर्ण होता है। और प्रायः एक विधि का उपयोग किया जाता है। इट्स वेरी क्रूशियल कि आप जो जगत है, जो विश्व है, दुनिया है, उसको छोटे छोटे वेरिएबल्स में आप बांट देते हैं। से एक आदमी का आप व्यवहार देखना चाहते हैं, एक समूह का व्यवहार देखना चाहते हैं, तो आपने कह दिया कि इनकी प्रेरणा किस प्रकार की है, इनका निष्पादन किस प्रकार का है, बस बाकी चीजों से हमारा कोई मतलब नहीं है। और हम इनको एक प्रश्न पत्र देंगे, उस पर जो उत्तर देंगे उसी से हम इनका मूल्यांकन कर लेंगे और काम खत्म। सिंगल मेथड एंड फोकस ऑन वेरिएबल्स। द पोस्ट पॉजिटिविस्ट इज मोर इंटरेस्टेड इन प्रोसेसेस, नॉट इन वेरिएबल्स। वेरिएबल्स सब डिस्क्रीट होते हैं, अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। प्रोसेस का मतलब है प्रक्रिया, अर्थात क्या घटित हो रहा है, वह पूरी प्रक्रिया देखना चाहते हैं कि किस क्रम में किसके बाद क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। एंड नॉट वन मेथड बट सेवरल मेथड्स। They use triangulation because one method is obviously going to provide one kind of perspective, a limited knowledge of that phenomenon. So you need to understand a phenomenon from several perspectives, and that is called triangulation. कि कई विधियों के द्वारा, कई तरीकों से अगर आप अध्ययन करते हैं और एक ही तरह का परिणाम आता है तो अच्छी बात है, तब वह विश्वसनीय और वैध किस्म की जानकारी होगी। एक तरीके से आपने पूछ लिया और प्रायः बहुत सारे हम में से लोग कहते हैं कि हमसे तो इतना ही पूछा और निर्णय ले लिया कि हम मूर्ख हैं या विद्वान हैं, और तो चीजें पूछी ही नहीं। ट्रायंगुलेशन का अर्थ हुआ कि आपने जो प्रकाशित किया है वह भी लिया जाए, आपने जो पढ़ा है, आपकी समझदारी, उसके बारे में भी आपसे बात करें, आपके लेखन को भी देखें। तो ट्रायंगुलेशन इन्वॉल्व्स यूज ऑफ मल्टीपल सोर्सेज ऑफ नॉलेज और सेवरल मेथड्स एंड फोकस ऑन प्रोसेसेस, दैट व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग। जबकि वेरिएबल में इंड पॉइंट आप ले लेते हैं दो और उनके स्टैटिस्टिक्स का मेथड लगा के कॉरिलेशन निकाल लेते हैं, वो बता देंगे कि ये इससे जुड़ा हुआ है। अब एक सड़क पर अगर कुछ लोग एक दिशा में जा रहे हैं, उन दोनों के बीच में कॉरिलेशन बहुत तगड़ा आपको मिलेगा, पॉजिटिव कॉरिलेशन, आपस में उनका कोई रिश्ता नहीं हो सकता। सब लोग एक ही जगह उतरते होंगे बस से, तो क्या इसका मतलब आपस में जुड़े हुए हैं? कॉरिलेशन तो सिर्फ यह बताता है कि कुछ घटनाएं एक समय में एक साथ घटित हो रही हैं, बस, इससे अधिक नहीं। प्रोसेस ये बताएगा कि यह करने से यह हुआ, यह करने से उसके कौन कौन से चरण हैं, सारी स्टेजेस, ये तो प्रोसेस की स्टडी जो है वह पोस्ट पॉजिटिविस्ट में की जाती है। और यहाँ पॉजिटिविस्ट में अब हम क्वांटिटेटिव मेथड्स के सहारे बहुत सारे मॉडल बनाते हैं और आपस में रिश्ते सब देख लेते हैं। नाउ द नेक्स्ट feature of positivist view is objectivity and causation. Objectivity means that
different people are perceiving or reporting about a phenomenon and share a common view. सब लोग कहें कि हाँ हम ये देख रहे हैं तो वो ऑब्जेक्टिव हो गया. And it is believed that it is neutral, impartial, and the focus is on causation. I have already mentioned about causation, regularity of contingent relationship. कि एक घटना होती है तो दूसरी घटना भी उसके साथ अगर होती है तो इसे causal relationship माना जाता है. But here in post-positivist view, the emphasis on subjectivity. The emphasis is on meaning. सब्जेक्टिविटी का अर्थ यह हुआ कि आपके अपने निजी अनुभव में क्या आपको भी ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है. तो अनुभव की जो भाषा है और अर्थ, मीनिंग, because how you appreciate some phenomena is more important. आप किसी व्यक्ति को, किसी पदार्थ को, किसी घटना को देख करके उसका अर्थ क्या लगाते हैं, यह आपके व्यवहार को निर्धारित करेगा कि भैया यहाँ से चले चलो, या यहाँ सुनो, या यहाँ बैठो. यह आप अर्थ ग्रहण के ऊपर निर्भर करेगा कि आप क्या करेंगे. और यह नितांत जो है सब्जेक्टिव होगा, यह ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है. सो देयर इज मोर रिस्पेक्ट फॉर ऑब्जेक्टिविटी एंड मीनिंग in case of post-positivist view of reality, and it also respects, the context, it respects process. अगली जो बात यहाँ रखी गई है वो है reduction to numbers. Most of the positivist researchers try to convert all experience, everything into numbers. उसे अंकों में आप बदल देते हैं. अब छोटा सा उदाहरण लीजिए, आप परीक्षा में कोई बच्चे का जो लिखित उत्तर है उसको पढ़ के आप 10 में 5 नंबर देते हैं, 10 में 8 देते हैं, 0 भी देते हैं, 10 भी दे सकते हैं. अब तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जिसमें कि लड़कों को 100 में 100 नंबर हिंदी और किसी भी सब्जेक्ट में, हिस्ट्री और ज्योग्राफी सब में मिलता है. क्या मतलब है उसका? क्या उसको सब कुछ आता है उस विषय में? बड़ा कठिन है का. कैन यू कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू नंबर्स? जो हमारे अनुभव हैं, हमारी व्यवहार की विशेषताएं हैं, उन सबको हम नंबर में कन्वर्ट करते हैं. नंबर में, संख्या में बदलने से उसका विश्लेषण करना बड़ा आसान हो जाता है. आपने 1 2 3 4 नंबर दे दिया तो इन नंबर को किसी और प्रक्रिया में जो नंबर आपने दिया उससे आप जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा भाग कर सकते हैं. सो दे अलाउ यू टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ एनालिसिस. बट इफ यू गो इनटू द डिटेल्स, you will be in trouble how these things are interrelated, because if you convert everything into number, you can relate anything to anything, but that may not be the reality, and that is happening. You are using different kinds of modeling and all that, and you think that you are able to appreciate reality. It is again limited to the procedures, because you only arbitrarily give numbers. You use various scales, rating scales. कि आपने कहा कि भाई strongly disagree को आपने 1 नंबर दिया और strongly agree को 5 नंबर दिया, और बीच में कह दिया ना strongly agree ना disagree, उसको 3 नंबर दिया, या 7 पॉइंट स्केल बन. तमाम तरह के नंबर का उपयोग तो खूब किया जा रहा है, लेकिन नंबर को
उपयोग में ले आने के कुछ लाभ हैं तो उसके साथ कुछ कष्ट भी है उसके. So in post-positivist view, language and discourse becomes very important. भाषा जो है वो अधिक महत्वपूर्ण है. यहाँ तक कि उस भाषा में जो मौन है उसका भी महत्व है. आप बीच में जो गैप देते हैं उसका भी, साइलेंस का भी कुछ अर्थ होता है. जो आख्यान है, डिस्कोर्स है, उसका महत्व है, नरेटिव का महत्व है. अगली जो विशेषता है वो ये है कि the positivist view is atomistic, अणु. You try to reduce it to a simpler category, and it is largely statistical. Now, you can divide something in different components. If you have a triangle ABC and you have three lines A, B, A, C and BC, a triangle consists of A, B, A, C and BC, but it is not sum of A, B, A, C and BC. तीनों लाइनों को आप किसी भी तरह से रख देंगे तो ट्रायंगल नहीं बनेगा. So triangle is more than these three lines. Something, the triangularity is present when you experience that it is not merely the line. तो एटॉमिस्टिक के बदले में जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट है वो होल की, संपूर्ण की, समग्र की, गेस्टाल्ट की छवि को ग्रहण करने का प्रयास करता है. इट इज होलिस्टिक, complete, comprehensive, as much as possible. And it is not a statistical, सांख्यिकी कम. It is more interpretive. You interpret in the context of how the language is used, how silence is used. So interpretation is not something which is fixed. It is subjective. In statistics, there is nothing which is subjective. Everything is calculated. It is part of a process of handling numbers in certain ways. So this one is atomistic and statistical, and this one is holistic and interpretive. Then we have a wonderful difference between the two, and I hope you will appreciate it. Spectator's view and insider's view. Spectator means one who is viewing from some place. आप दर्शक हैं, जो कुछ घटित हो रहा है उसको आप देख रहे हैं. तो आप कहाँ बैठ के देख रहे हैं इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है. और दूसरी बात यह है कि स्पेक्टेटर की जो दृष्टि है वह जो कुछ देख रहा है उस पदार्थ, उस वस्तु, उस घटना से उसकी दूरी बनी हुई है, वह उससे जुड़ता नहीं है, वह स्पेक्टेटर है. Here in post-positivist, the emphasis is in insider's view. That you are inside. You are getting a perspective from the side of the reality itself. आप एक समूह के अंग बन करके उस समूह का अध्ययन अगर करिए, सोशियोलॉजी में या सोशल मेथड्स में पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी है और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी है. तो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन स्पेक्टेटर्स व्यू हुआ और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इनसाइडर्स व्यू हुआ.
जब आप उस समूह का सदस्य हो करके अध्ययन करेंगे तो आपको जो ज्ञान मिलेगा वो एक प्रकार का होगा, वो अधिक प्रामाणिक होगा। आप गांव में जाइए और लोग अगर समझते हैं कि कोई बाहरी आदमी है तो उनका व्यवहार बदल जाएगा, और इनसाइडर्स व्यू है तब वह खुल करके आपके सामने आएंगे। अगर आप उस समूह के सदस्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं तो उनके दुख सुख पीड़ा सब कुछ आपको वास्तव में दिखाई देगी, वो इनसाइडर्स व्यू। एक बड़ा अच्छा उदाहरण ये है कि एक आदमी पानी में तैर रहा है और बाहर बैठ करके कुर्सी पर और दूरबीन लगा के आप हर गणना कर रहे हैं कि उसका बायां पैर जो है वो किस एंगल पर कहाँ गया, और मार हजारों फोटोग्राफ आप लीजिए, क्या आप उसको पता चल पाएगा कि तैरने का मतलब क्या होता है? जो आदमी तैर रहा है उससे पूछिए कि भाई तैरना क्या होता है। तो स्पेक्टेटर्स व्यू विल नेवर हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ स्विमिंग। ओनली स्विमर कैन टेल यू व्हाट इट मीन्स। भैया तैरने का अर्थ क्या होता है? केवल पैर को एक खास एंगल पर, हाथ को एक खास एंगल पर घुमाना फिराना तो नहीं है तैरना, इट्स मोर देन दैट। तो इनसाइडर्स व्यू जो आप उसकी अंतर यात्रा करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं, और स्पेक्टेटर्स व्यू आप बाहर से आपने देख लिया कि कहाँ पर क्या हो रहा है, वो उसका आंशिक ही अर्थ दे सकता है। अगला और भी बड़ा कठिन प्रश्न उठता है कि जो हमारा साइंस का एक्सेप्टेड व्यू है, जो पॉजिटिविस्ट व्यू है, वो हर आदमी को रैशनल इंडिविजुअल मानता है, शेप्ड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। रैशनल मीन्स एकदम तर्क के आधार पर उचित अनुचित का विवेक, बिल्कुल ठीक, आदर्श, और केवल परिस्थितियां उसको प्रभावित करती हैं। तो परिस्थितियों को समझ लीजिए, और वो रैशनल इंडिविजुअल, तो हर आदमी रैशनल इंडिविजुअल है और हर आदमी फिर एक ही तरह से व्यवहार करेगा। मगर यहाँ पर जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट व्यू है वो कहता है कि ना, मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, सोशल बीइंग, अर्थात वो क्या है वो उस समाज पर निर्भर करेगा जिसका वो सदस्य है, उस समूह का सदस्य है, उस परिवेश का प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा। वो उसकी सत्ता जो है उस परिवेश की सत्ता से अलग नहीं है, है? एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए हैं जिनका नाम है मैकी मैरियट, शिकागो विश्वविद्यालय के। वो भारत का भी बड़ा अच्छा अध्ययन 1950-55 में यहाँ के गांवों का बड़ा अध्ययन किया था उन्होंने, बड़े प्रसिद्ध विद्वान है। उनकी बड़ी अच्छी पुस्तक है, इंडिया थ्रू हिंदू कैटेगरीज, से प्रकाशित हुई थी 1990-91 में, आप देखिएगा। उन्होंने एक बड़ा अच्छा शब्द देखा अपने अनुभव को कि इंडियंस आर डिविजुअल्स, दे आर नॉट इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल तो वो है जो विभक्त हो गया, नहीं सॉरी, जो विभक्त, जो अविभाजनीय है। इंडिविजुअल बिल्कुल ठोस, अकेला, सेपरेट। एंड हियर यू आर कंपोज्ड ऑफ पीपुल। आपकी सत्ता, आपकी उपस्थिति, आपके व्यक्तित्व, आपकी परिभाषा, आप जिनसे जुड़े हुए हैं उनसे प्रभावित है। यू आर डिविजुअल्स, यू आर नॉट इंडिविजुअल्स। इंडियंस आर डिविजुअल्स। और गहराई में जाइए तो स्वामी तुलसीदास कहते हैं, चित जल पाव गगन समीरा। तो आप तो इन्हीं तत्वों से निर्मित हैं। बहुत कुछ बात होती है कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनसे आप निर्मित हैं, वगैरह वगैरह। कहने का अर्थ यह हुआ कि
एक ऐसे रैशनल व्यक्ति की सत्ता सोशल व्यक्ति की सत्ता से भिन्न किस्म की है। वास्तविकता कुछ और है, और जो सोशल बीइंग है वह स्वयं अपनी दुनिया का अर्थ ग्रहण करता है। मतलब एक ही परिस्थिति में दो व्यक्तियों का व्यवहार अलग अलग होगा, जबकि पॉजिटिविस्ट कंडीशन ये होगी कि अगर परिस्थितियां एक ही हैं तो व्यक्ति सभी रैशनल हैं, तो उनका एक तरह का सिद्धांत आप बना सकते हैं। मगर यहाँ बड़ा मुश्किल है कि एक तो आप रैशनल इंडिविजुअल नहीं, आप सोशल बीइंग है, एंड देन यू आल्सो मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड। तो एक ही परिस्थिति का अर्थ दो व्यक्ति दो भिन्न प्रकार से लगा सकते हैं। एक आदमी उस परिस्थिति में थ्रेट का अनुभव कर सकता है, दूसरा आदमी उसमें बड़े प्रसन्नता से रह सकता है। एक ही परिस्थिति को एक आदमी चुनौती देखता है, एक आदमी उसी में कोई अवसर ढूंढ लेता है। तो हाउ वी मेक सेंस, ये पूरी सब्जेक्टिव प्रोसेस है। हम स्ट्रेस का अनुभव करते हैं या नहीं करते हैं, ये परिस्थिति और हमारे बीच का जो रिश्ता है कि हम उसका प्रत्यक्षीकरण, उसका परसेप्शन कैसे करते हैं, इसके ऊपर निर्भर करता है। हमारे कहने का अर्थ यह हुआ कि एक दृष्टि यह है जिसमें सब्जेक्टिविटी को महत्व दिया जा रहा है और दूसरे में परिस्थिति को और रैशनैलिटी को बल दिया जा रहा है। इस प्रकार के जो सिद्धांत हैं, और ऑलमोस्ट ऑल सोशल साइंसेस, दे आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रैशनल इंडिविजुअल्स। लेकिन हम आप कौन ऐसा है जिसको गुस्सा और कब गुस्सा आ जाएगा, कब प्रेम आएगा, स्नेह आप क्या करेंगे, ये सब चीजें इतनी, उसको पूरी तरह से आप रैशनल तो नहीं कह सकते। अंत जो बिंदु यहाँ रखा गया है, द पॉजिटिविस्ट क्वेरी और क्यूरियोसिटी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स व्हाई क्वेश्चन, कि ये ऐसा क्यों है। जबकि जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट हैं उनकी रुचि इसमें है कि व्हाट, बाबा ये जो है वो है क्या, उसको समझा तो जाए, पकड़ा तो जाए, ग्रैस्प तो किया जाए, कैप्चर तो करें उसको। भाई कब हुआ, कैसे हुआ, क्या, कब, कैसे। तो संपूर्ण अध्ययन की जो एक दृष्टि पोस्ट पॉजिटिविस्ट पैराडाइम्स में है वो इस प्रकार की है, और पॉजिटिविस्ट दृष्टि जो है वह इस प्रकार की है। हमने आपसे ये साझा करना चाहा, और मुझे लगता है कि ये दो प्रकार की दृष्टियां हैं कि हम दुनिया को सिर्फ एक स्वतंत्र स्थित भौतिक पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं, जिसका मापन किया जा सकता है, जिसका मात्राकरण क्वांटिफिकेशन किया जा सकता है, जिसका कंट्रोल किया जा सकता है, प्रेडिक्शन किया जा सकता है, शुद्ध रूप से जो एक ऑब्जेक्टिव पदार्थ है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो सकती है, और हम उसको कॉन्टेक्स्ट फ्री दृष्टि से देख सकते हैं। और आप थोड़ा सा विचार करें कि प्रायः जो हमारे स्वीकृत सिद्धांत हैं वो पॉजिटिविस्ट दृष्टि से ही निर्मित होते हैं, या हमारे जो अध्ययन प्राय किए जाते हैं उसमें पॉजिटिविस्ट दृष्टि ही प्रभावी होती है। और वह जो हमारी वास्तविकता है, वास्तविकता हमारी डायनेमिक है, गतिशील है। वास्तविकता ऐसी है जिसमें हम अर्थ के आधार पर अपना व्यवहार, आचरण और संबंध परिभाषित करते हैं, जहाँ पर चीजों का अध्ययन किसी एक विधि से समग्रता में नहीं किया जा सकता है, जहाँ पर वैयक्तिकता और अर्थ जो है वो अधिक महत्वपूर्ण है, जहाँ भाषा महत्वपूर्ण है, जहाँ निर्वचन इंटरप्रिटेशन महत्वपूर्ण है, जहाँ पर उसके साथ एक आंतरिक संवेदना की आवश्यकता है कि हम उसके प्रति
ऐसी दृष्टि से हम अध्ययन करें, जैसे मान लीजिए कि आप ऐसी जगह पहुंचे अध्ययन करने के लिए, कई विदेशी आए भारत में, उन्होंने समाज वैज्ञानिक, इस समय भी बहुत सारे लोग आए हैं। एक सोशियोलॉजिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट मार्गरेट ट्रेविक, तो वो उसने आई और वो तमिल का उसने अध्ययन किया, तमिल भाषा खूब अच्छी तरह से ग्रहण किया, तमिल जीवन शैली का उसने अध्ययन किया। उसने लव टेल्स इसको लेकर के और तमिल क्षेत्र में अध्ययन किया, और उनके जीवन में बाल्यावस्था से किस प्रकार प्रेम स्नेह की भावना विकसित होती है। अद्भुत अध्ययन है उस दृष्टि से। तो जब आप उसमें संपृक्त होंगे, समझेंगे, उसके निकट आएंगे, तो आपको उसी रूप में स्वीकार किया जाएगा, और फिर आप उस घटना को उसी दृष्टि से देख पाएंगे जिस दृष्टि से वह गांव या उस भाषा को बोलने वाला व्यक्ति देखता है। और दूसरी दृष्टि से आप देखते हैं, हम लोगों की प्राय जो अध्ययन की पद्धति है, अंग्रेजी में आप थीसिस लिखते हैं और प्रश्नावली हिंदी में पहले तैयार होती है। तो आपको अध्ययन किसी एक अमूर्त विषय का करना है, उसको आप धरती पर ले आने के लिए एक प्रश्नावली तैयार की, प्रश्नावली आपने हिंदी में तैयार की, और फिर उसके आधार पर एक एक व्यक्ति से डेटा लिया, फिर उसको इकट्ठा किया, स्टैटिस्टिक्स लगाया, फिर उसके बाद निष्कर्ष निकाले, फिर उसको मूल कॉन्सेप्ट्स में आप ले गए। अब ये देखिए कि कितने स्तरों पर परिवर्तन हो रहा है, रूपांतर हो रहा है, और जो हमारी वास्तविक ज्ञान की उपलब्धि है और जो वास्तविकता है, उसके बीच में बड़ी दूरी हो जाती है। ये एक बड़ी जटिल परिस्थिति हमारे सामने है, और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, अनुभव हैं, जिनको कि इस प्रक्रिया में, इस अनुवाद की प्रक्रिया में हम इधर उधर कर देते हैं, कुछ का कुछ हो जाता है, तो कुछ उत्तर आप दे देते हैं। अब किसी से पूछिए कि आपको कितनी खुशी की अनुभूति हो रही है, कितनी हैप्पीनेस आप महसूस करें। किसी गांव वाले से पूछिए और कहिए कि बहुत ज्यादा खुश, अधिक खुश, सामान्य रूप से खुश, कम खुश, बहुत कम खुश, 5 पॉइंट स्केल पर आप पूछिए, आपको खदेड़ देगा वो कि भैया क्या बकवास आप कर रहे हैं। आप तमाम सारे अनुभव में, तमाम सारी जो प्रश्नावलियां हैं उनको आप देखिए तो आप माथा पकड़ लेंगे अपना, कि किस तरह से हम चीज़ों को ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, और उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी डिस्टॉर्टेड हो जाती है, विरूपित हो जाती है। जो स्वाभाविक रूप उसका है वह छोड़ करके कुछ का कुछ अध्ययन हम करते हैं और कुछ का कुछ निष्कर्ष हम निकालते हैं। यह केवल अनुवाद की ही समस्या नहीं है। यहाँ पर सचमुच ये बड़ा आवश्यक है कि जब तक आप उस भाषा और समाज की वास्तविकता के निकट नहीं जाएंगे, जब तक उसके अर्थ को समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हम सत्य का अन्वेषण जो है वह ठीक से नहीं कर सकते। पोस्ट पॉजिटिविस्टिक जो दृष्टिकोण है, जो पैराडाइम है, वो हमको इसका अवसर प्रदान करता है कि हम यह देखें कि हम उन घटनाओं को, उन तत्वों को उनके संदर्भ में ग्रहण कर पाएं, उनके संदर्भ में पकड़ पाएं और उनको उनके वास्तविक परिप्रेक्ष्य में देखा जा सके। तो पॉजिटिविस्ट जो दृष्टिकोण है उसी का प्रभुत्व हम लोगों की शोध की पद्धति पर बहुत दिनों से बना हुआ है। शोध का अर्थ ही हम यही मानते हैं कि उसी एक ढांचे के अंतर्गत हम काम करते रहें। पूछिए, आप लोगों से बात करें क्या कर रहे हैं, तो डेटा कलेक्ट करते हैं।
अब डेटा एनालिसिस हो रहे हैं। अब डेटा एनालिसिस भी कंप्यूटर के पास चली गई है। कई लोगों से वाहवा में पूछा जाता है कि भाई ये जो परिणाम है क्या है, बोले साहब हम नहीं जानते, तो कंप्यूटर ने किया है और उसका परिणाम हम क्या बताएं। अब बताइए, शोधकर्ता जो सामाजिक विज्ञान में है उसकी जो अनुभूति है, प्रतीति है, जो संवेदना उसकी होनी चाहिए, वह पॉजिटिविस्ट पृष्ठ में गायब हो जाती है, क्योंकि वह यह मान करके चलता है कि जो हमारी प्रश्नावली है उससे हम वास्तविक तथ्यों का आकलन कर रहे हैं। जबकि आप प्रश्न पूछते हैं तो वह प्रश्न दूसरा व्यक्ति किस रूप में ग्रहण कर रहा है, उसका क्या अर्थ लगाता है, उसके ऊपर उसका उत्तर निर्भर करेगा। कई बार तो वो यह पूछता है कि अच्छा बताइए आप क्या जानना चाहते हैं, आपका आशय क्या है इस प्रश्न पूछने के पीछे। इस तरह के बहुत सारे अनुभव मिलेंगे कि आप गांव में अध्ययन करने गए और झूठ मूठ में लोगों को लगा कि ये तो सरकार का आदमी है और ये अनुदान देने के लिए आया है, तो झूठ मूठ में वो अपने को गरीब भी धनी और धनी भी गरीब, नाना प्रकार के लोग उत्तर देते हैं। हमारे बहुत सारे इस तरह के जो प्रदत्त हैं, डेटा हैं, उनकी ही वास्तविकता संशयग्रस्त हो जाती है, आशंका हो जाती है कि कितना सही है कितना नहीं। और इसके साथ ही साथ और भी कठिनाइयाँ आती हैं कि आप एक प्रश्नावली बनाते हैं और उस प्रश्नावली में कई बार तो उनके उत्तर भी आप पहले से तय कर देते हैं। वो कहते हैं कि इसी में आपको टिक करना है, यही उत्तर आपको 5 में से 6 में से 10 में से आपको चुनना है। अब इस प्रकार हर चीज पहले से पूर्व निर्धारित हो गई। जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट दृष्टि है वह पूर्व निर्धारित सत्य और यथार्थ से थोड़ा आगे बढ़ती है। अब पॉजिटिविस्ट व्यू में जिन वेरिएबल्स को लेकर के, जिन परिवर्तियों को लेकर के आपने अपना अध्ययन आरंभ किया था, अध्ययन के अंत तक उसके बीच में आपको कोई छूट नहीं है कि उसमें कोई आप बदलाव ले आ सके, कोई थोड़ा भी परिवर्तन कर सके, बिल्कुल नहीं। आप जो देख रहे हैं वह भी आप उसमें नहीं इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि वह परिवर्तन के बाहर है। जबकि जो आप देख रहे हैं वह आपके अध्ययन को पूर्ण करने के लिए आवश्यक हो सकता है, लेकिन आप उधर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि आपके वेरिएबल की परिधि में नहीं है। अंग्रेजी में कहें तो पोस्ट पॉजिटिविस्ट व्यू में जो इमर्जेंट रियलिटी है, जो रियलिटी पैदा हो रही है, घटित हो रही है, उसको पकड़ने का भी अवसर होता है। आप देखिए, अक्सर शोध करने में 4-5 साल तो लोग लगा ही देते हैं, और कई लोग तो इससे भी अधिक 7-8 साल पहले लगाते थे, 8-10 साल तक लगाते थे। सही में गलत में तमाम सारी बाधाएं हैं। अब 5 साल की अवधि में भी वह जो सामाजिक घटना है उसका जो स्वरूप है वह वही नहीं रहेगा जो कि पहले था। और सोशल साइंस रिसर्च में प्राय लोग कहते हैं कि 200, 400, 500 का सैंपल होना चाहिए। अब 500 के सैंपल के लिए आपने 6 महीने में डेटा कलेक्ट किया जिन लोगों पर। अब उस 6 महीने की अवधि में ही इतना परिवर्तन हो गया कि पहले महीने में जिस व्यक्ति पर आपने उन प्रश्नों के साथ उत्तर लिया था और 6वें महीने में जो लिया उनका उत्तर वही नहीं रहेगा। उसी आयु वर्ग, उसी परिवेश के रहने वाले भी व्यक्ति जो हैं परिस्थितियों में बदलाव के कारण
एक व्यक्ति का उत्तर दूसरा होगा और पहले व्यक्ति का उत्तर दूसरा होगा। अब आपके अध्ययन में इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है कि आप उनको उस परिस्थिति के प्रभाव से कैसे वो प्रभावित हो रहे हैं उसका आकलन करके उसका आप उपयोग करें। तो क्योंकि ये लीनियर है, जैसे बंदूक में गोली लगा दी तो छूटेगी, आगे गिरेगी जा करके। ऐसे ही आपने शोध तय कर लिया, उसमें फिर विचार विमर्श करने का, सोचने का कोई आपके पास अवसर नहीं है। तो जो पॉजिटिविस्ट विधि है वह भौतिक पदार्थ के लिए तो ठीक है, क्योंकि वह जो का त्यों रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें तो व्यक्ति भी परिवर्तित हो जाता है, उसका मानसिक विकास भी होता है, शारीरिक विकास भी होता है, और परिस्थितियां भी बदलती हैं। तो परिस्थिति भी बदल रही है और व्यक्ति भी बदल रहा है। व्यक्ति भौतिक रूप से भी बदल रहा है और संज्ञानात्मक रूप से भी बदल रहा है। तो इस परिवर्तित हो रहे व्यक्ति, जो कि परिवर्तित हो रही परिस्थिति में जीवित है, और उन सारे व्यक्तियों को आप एक ही जैसा मान लेते हैं, तो आपके परिणाम दूषित होंगे और उससे आप पर्याप्त जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते। उसकी सीमा है। मैंने यहाँ पर जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट और पॉजिटिविस्ट दो तरह की दृष्टियों का उल्लेख किया, उसका उद्देश्य था कि ये दो पोल हैं, दो तरह के एक्सट्रीम हैं। एक जो कि यथार्थ को दिया हुआ मानता है, एक्सटर्नल रियलिटी पहले से फिक्स्ड है, उसका मापन किया जा सकता है, व्यक्ति भी स्थिर है, परिवर्तन आपने चुन लिए, उनका आपने अध्ययन किया। तो यहाँ पर परिस्थिति के प्रति संवेदना हमारी बड़ी सीमित होती है। तो परिस्थिति के प्रति जब तक हमारी संवेदना नहीं होगी, कम से कम समाज विज्ञानों में हमारे परिणाम उतने वैध और विश्वसनीय नहीं होंगे जितने की होने चाहिए। और दूसरी बात जो मैंने यहाँ पर आपके सामने रखी थी वो ये थी कि जो इमर्जेंट रियलिटी है, जो नई घटना घटित हुई, जो परिवर्तन आया, उसके प्रति आप कितने संवेदनशील हैं, उसका अध्ययन आप किस प्रकार करते हैं। आप किस प्रकार भाषा और अर्थ को महत्व देते हैं। मनुष्य जो है वह एक जीवित प्राणी है जो कि प्रतीकों का उपयोग करता है, भाषा का उपयोग करता है, संप्रत्ययों का उपयोग करता है, और ये सब उसकी अपनी सामाजिक परिस्थिति से प्रभावित होता है। तो ऐसे सजीव व्यक्ति को यदि आप अपने अध्ययन का पात्र बनाते हैं, जिसका उपयोग आप कर रहे हैं, उसको इन सारी विशेषताओं से काट करके, अलग करके यदि आप अपने अध्ययन में शामिल करते हैं, तो यह ठीक नहीं है। तो जो पॉजिटिविस्ट विधि है या पॉजिटिविस्ट पैराडाइम जो है, वह भौतिक पदार्थों के लिए तो उपयोगी है, लेकिन जो सामाजिक जीव हैं, मनुष्य हैं, उनके लिए इसका उपयोग ठीक नहीं है। या कुछ चीजों, कुछ पक्षों के लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पर इनका उपयोग लाभदायक नहीं होगा, और उनसे हमको वास्तविक के बदले में, यथार्थ के बदले में कृत्रिम ज्ञान ही हमको प्राप्त हो सकेगा। यह एक बड़ी भारी चुनौती हमारे सामने आती है। अंग्रेजी में एक शब्द है जिसे कहते हैं इकोलॉजिकल वैलिडिटी। जो पॉजिटिविस्ट पैराडाइम है, उसका जो सर्वश्रेष्ठ अध्ययन करने का तरीका है, उसे हम प्रयोग करना कहते हैं। कि एक प्रयोगशाला में बिल्कुल नियंत्रित परिस्थिति में, यू कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट अंडर
controlled conditions, you manipulate variables, you observe influence of selected variables on another set of variables, and you draw conclusions on the basis of those observations. That is one kind of paradigm, and that has been the prevailing paradigm. And we go for various kind of statistical methods. We use descriptive statistics to describe. We use inferential statistics of various kinds, which help us to test our hypotheses using correlational methods, or you can use the regression analysis, you can use t-test, you can use analysis of various. There are so many ways of using statistical methods, applying our statistical methods, and drawing inferences about the various processes which are being studied. And then you draw conclusions about those processes. So that approach has been the dominant approach. Actually, that served as the model for doing research. Our research follows that perspective, and that has been considered as the scientific perspective. But gradually, it has been realized that it has certain limitations, and approach towards science, approach towards reality has changed. हिंदी में जिसे उत्तर आधुनिक दृष्टि कहते हैं, पोस्ट मॉडर्निस्ट दृष्टि कहते हैं, वह पोस्ट पॉजिटिविस्ट दृष्टि है, जो किसी एक सत्य को ज्यादा महत्व नहीं देती है। उसकी जो हेजमनी है, उसका जो वर्चस्व है, उसके ऊपर वह आक्षेप लगाती है कि भाई और दृष्टियां भी विचार करने की हैं, केवल यही एक दृष्टि नहीं है। उन अन्य दृष्टियों से अगर यदि आप देखें तो आपको सत्य और यथार्थ दूसरे रूप में दिखाई देगा। तो कहते तो ये हैं कि भाई अब सबको केवल अर्ध सत्य ही प्राप्त होंगे। पूर्ण सत्य की कल्पना तो आप कर लीजिए, लेकिन पूर्ण सत्य तो किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। तो ये जो सत्य की बहुलता है, सत्य को पहुंचने के जो मार्ग हैं वो कई प्रकार के हैं, और उन मार्गों से सत्य के अलग अलग रूप दिखलाई पड़ते हैं। और यह बात पूरे हमारे विश्व के जो परिदृश्य को अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि कितने सांस्कृतिक भेद हैं। आपने देखा ना श्वेत और श्वेत को लेकर के अभी अमेरिका में किस प्रकार के संघर्ष वहाँ के समाज में विकसित हुए। अब श्वेत के प्रति क्या दृष्टि है, अश्वेत के प्रति क्या दृष्टि है, और जो गवर्नेंस है उसकी क्या दृष्टि है, और समाज की क्या दृष्टि है, आप उसकी व्याख्या जिस रूप में आप करना चाहें आप करें। तो यथार्थ के प्रति हमारी अनेक प्रकार की दृष्टियां हैं। कहा तो ये जाता है कि वस्तुतः हमको यथार्थ की एक तरह की व्याख्या तक पहुंच होती है, और हर व्यक्ति उसकी व्याख्या करने के लिए, हर समाज और हर समुदाय उसकी व्याख्या करने के लिए स्वतंत्र है, और अलग अलग प्रकार की व्याख्याएं हैं। कहते हैं कि मनुष्य की नियत है वह एक व्याख्या से दूसरी व्याख्या, दूसरी से तीसरी व्याख्या, तीसरी से चौथी व्याख्या, इस प्रकार के हार्मोनेटिक सर्कल में वो घूमता रहे। किसी एक सत्य को ही सत्य मान लेना ठीक नहीं है। तो सत्य की जो बहुलता है वह इस पोस्ट पॉजिटिविस्ट दृष्टि में है, जो उत्तर आधुनिकता की दृष्टि है, जहाँ पर किसी एक दृष्टि का वर्चस्व नहीं है,
जहां पर लोगों के अर्थ और व्याख्या के तरीकों की भी स्वीकृति है। यह जरूर है कि जब हम पोस्ट पॉजिटिविस्ट दृष्टि का उपयोग करते हैं अपने शोध को करने में, तो हमको अपने दृष्टि को भी व्यक्त करना चाहिए। व्यक्त करने का अर्थ यह है कि आपको स्पष्ट रूप से यह कहना चाहिए कि हम मार्क्सवादी दृष्टि से अध्ययन कर रहे हैं, या हमारी इस प्रकार की सैद्धांतिक वरीयता है, उस वरीयता की दृष्टि से यह हमारा अध्ययन किया जा रहा है। हम फेमिनिस्ट हैं, स्त्रीवादी दृष्टि हमारी है, या इस प्रकार की सांस्कृतिक दृष्टि हमारी है। क्योंकि इन भिन्न भिन्न दृष्टियों से जब हम विश्व को देखते हैं, जगत को देखते हैं, वास्तविकता को देखते हैं, तो अलग अलग चीजें दिखाई पड़ती हैं। मान लीजिए कि कोई एक समाज है जहां पर ईश्वर शब्द नहीं है, ईश्वर की अनुभूति और ईश्वर की उपस्थिति, ये सारा का सारा आख्यान ही वहां से गायब है। और एक दूसरा समाज है जहां पर हर बात में ईश्वर उपस्थित है, नाना प्रकार से उपस्थित है, नाना प्रकार की पूजा होती है, उपासना होती है। अब ईश्वर मुक्त और ईश्वर युक्त दो तरह के अगर समाज हैं, तो क्या दोनों तरह के समाजों की व्याख्या एक ही प्रकार की होगी किसी भी घटना की? मेरा ख्याल है कि जो समाज ईश्वर मुक्त है या दूसरा जो ईश्वर युक्त है, उन दोनों समाजों की दृष्टि में चीजों की व्याख्याएं भिन्न भिन्न प्रकार से, उनके दुख की व्याख्या, उनके सुख की व्याख्या, उनके कष्ट की व्याख्या, उनके यथार्थ की व्याख्या अलग अलग ढंग से। कहने का अर्थ यह हुआ कि हमारी दृष्टियां जो हैं और जो हमारा दृश्य दिखाई देता है, उन दोनों के बीच में बड़ा गहरा संबंध है। दृश्य को दृष्टि से अलग तो नहीं कर सकते, दृष्टि के अनुकूल दृश्य जो है बनता है। तो जो हमारा डेटा है, जो हमारी एनालिसिस है, जो हमारी व्याख्या है, वह हमारी दृष्टि के ऊपर निर्भर करता है। और इस दृष्टि में आपका अर्थ की जो प्रतीति है, जो आपकी स्थापनाएं हैं इस विश्व के बारे में, यथार्थ के बारे में, जगत के बारे में, उन सब के अनुसार ही आप आचरण भी करेंगे, व्याख्या भी करेंगे। तो कहीं न कहीं ये सारी चीजें जो कि सब्जेक्टिव हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं है। कोई दूसरे व्यक्ति की दूसरे तरह की दृष्टि है, तीसरे व्यक्ति की तीसरे तरह की दृष्टि है। तो इन भिन्न भिन्न दृष्टियों की अपनी अपनी सत्ता है और उनको पहचानने की आवश्यकता है। तो ये दो भिन्न प्रकार के विचार हैं। जैसा कि मैंने कहा, जो प्रभावी रहा है वह पॉजिटिविस्ट दृष्टिकोण ही रहा है। पोस्ट पॉजिटिविस्ट दृष्टि जो है, इसकी भी इसका भी अच्छा खासा इतिहास है, लेकिन अभी भी इनका उपयोग हम अपेक्षाकृत कम करते हैं और हम बहुत सारे सत्य जो निकाल रहे हैं शोध से, वे वस्तुतः सत्य नहीं है। वो सत्य का जो एक संस्करण हमको मिल रहा है वह कृत्रिम सत्य है और वह कभी कभी असत्य भी होता है। इसलिए हमको अपने दृष्टि में परिवर्तन की आवश्यकता है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जहां पर पॉजिटिविस्ट दृष्टि, सांख्यिकी की दृष्टि उपयोगी है। आप गणना करना चाहते हैं, कोई चीज जानना चाहते हैं, उसकी मात्रा में रुचि रखते हैं, तो आप भरसक पॉजिटिविस्ट दृष्टि का उपयोग करिए, क्वांटिफिकेशन का उपयोग करिए। लेकिन जहाँ पर सब्जेक्टिव एलिमेंट महत्वपूर्ण है, वहां पर आपको दूसरे तरह की विधि का उपयोग करना ही पड़ेगा, तभी आप ठीक ठीक जानकारी या लगभग ठीक ठीक जानकारी पा सकेंगे। पोस्ट पॉजिटिव दृष्टि किसी पक्के, निरपेक्ष, एब्सोल्यूट ट्रुथ को पाने या वहां तक पहुंचने
कोई वादा इसके द्वारा नहीं किया जाता। आइए अब आगे देखें हम कहाँ हैं। तो यदि हम इस बदली हुई परिस्थिति में विचार करते हैं तो मानव व्यवहार के बारे में हमारा जो सोच विचार है उसके ऊपर एक बार फिर से ध्यान देना पड़ेगा। So we have to rethink about human behavior, human phenomena, social phenomena. And the first and most important realization is that human beings are not natural phenomena. They are not physical objects. The positivist view emphasizes that reality is similar across everything. Human beings or animals or objects, perhaps they share the same qualities. That's why you are using the same kind of method. मेथोडोलॉजी की दृष्टि से सभी वस्तुओं की, सभी पदार्थों की स्थिति एक ही प्रकार की है, चाहे जो भी हो. But human beings or people are not just natural phenomena. Yes, they are natural phenomena in some sense. आप भी पानी पीते हैं, भोजन करते हैं, बहुत सारी आपकी विशेषताएं हैं जो नेचुरल फेनोमेना के कैटेगरी में आती हैं. आप उनका उपयोग आप करिए. लेकिन मामला थोड़ा नाजुक हो जाता है जब आप ह्यूमन बीइंग को एक सचेत, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म आप मानते हैं. और लिविंग का अर्थ हुआ, जीवित प्राणी का मतलब हुआ, मनुष्य का अर्थ हुआ वह सोचने वाला है, उसमें प्रेरणाएं हैं, उसमें महत्वाकांक्षाएं हैं, उसकी इच्छाएं हैं. आप इन सबको काट करके उसको केवल एक खास तरह का शुद्ध मनुष्य जो है जिसमें इन सारी चीजों, उसकी मनुष्यता हटा करके आप उसका अध्ययन करें. साइकोलॉजी में हम लोग पहले शब्द उपयोग में लाते थे सब्जेक्ट, और कहते थे कि वो सब्जेक्ट जो है उसकी विशेषता कही जाती थी वह नाइव होना चाहिए, मतलब वह जड़ होना चाहिए, उसे कुछ नहीं मालूम होना चाहिए. अब बताइए कि मनुष्य की इस प्रकार की स्थिति को अगर स्वीकार किया जाता है तो यह कहाँ तक उचित है, उपयोगी है, और कहाँ तक यह यथार्थ ज्ञान के लिए सहायक होगा. So human beings are not just natural phenomena, they are more than that. Then human action is not law governed in the same way in which natural phenomena are. अब नेचुरल फेनोमेना बहुत सारे हैं जिनके बारे में फिजिक्स में, केमिस्ट्री में बहुत सारे नियम हैं, ज्यों के त्यों वो लागू होते हैं. लेकिन इसका यह अर्थ तो नहीं हुआ कि आज की इस गोष्ठी में जिसमें हम सब लोग बैठे हुए हैं, आप क्षमा करेंगे, लेकिन हम यह तो नहीं कह सकते कि हर व्यक्ति बराबर ध्यान से कान खोलकर, आंख खोलकर उतना ही सुन रहा है, देख रहा है, उतना ही समझ रहा है. ऐसा तो नहीं कह सकते कि हर व्यक्ति उसी प्रकार से समान होगा ना. हर व्यक्ति अपनी दृष्टि से इसकी उपयोगिता को भी देखेगा. किसी के लिए और अन्य महत्वपूर्ण कार्य होंगे, ध्यान उधर गया होगा. तो न सब बराबर सुन रहे हैं, न बराबर देख रहे हैं, न बराबर समझ रहे हैं. लेकिन भौतिक पदार्थ के रूप में यदि आप सब रहते तो हम मान लेते, या कोई भी मान लेता कि आप सब बिल्कुल बराबर है, ठीक ठीक उतना ही आप देख रहे हैं. तो वे सारे नियम ज्यों के, क्योंकि आप सबने यह सुना है इसलिए सारे बिंदु आपको उतनी ही मात्रा में आपके द्वारा ग्रहण किए गए हैं, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता. भौतिक पदार्थ होते तब तो यह कहा जा सकता था. So human action is not law governed in the same way in which natural phenomena. आप किसी से मिलते हैं, बड़े दोस्ती है, फिर भी
खटक जाता है कभी कभी, या जिनसे दोस्ती नहीं है उनसे मित्रता हो जाती है, बहुत सा परिवर्तन आता है. It's not natural. Then there is something else which is very, very important and which is beautiful, which is complex, which is very attractive. Human behavior is a communicative performance. जो मानव व्यवहार है वह एक पदार्थ मात्र नहीं है, कोई निष्क्रिय चीज नहीं है. उस व्यवहार का एक निश्चित अर्थ होता है, वह कुछ कहता है, वह एक कम्युनिकेटिव एक्ट है. उठना, बैठना, बोलना, खड़े होना, कहना, जो वह प्रस्तुत हो रहा है उस प्रस्तुति के पीछे भी कोई अर्थ छिपा हुआ है, और वह अर्थ जो सामने वाला है ग्रहण करता है, जो अर्थ वह ग्रहण करता है वही उसकी प्रतिक्रिया का आधार होता है. क्योंकि मानव व्यवहार जो है वह एक कम्युनिकेटिव परफॉर्मेंस है. हमारे हर वचन, हमारे हर क्रियाकलाप का एक अर्थ है, वह कुछ बता रहा है दूसरे को, कुछ कम्युनिकेट कर रहा है. बोल चाल, वस्त्र विन्यास, सब कुछ कम्युनिकेट करना है. वो कोई एक भौतिक पदार्थ मात्र नहीं है. आप विचार करें इसके ऊपर कि मानव व्यवहार की यह एक बड़ी अद्भुत विशेषता है कि वह एक कम्युनिकेटिव परफॉर्मेंस है. और आप देखिए ना, हर आदमी अपनी उपस्थिति से, अपनी बात से, अपनी प्रस्तुति से कुछ पहुंचाना चाहता है दूसरे व्यक्ति तक, दूसरे समाज तक, दूसरे समुदाय तक. उसका श्रोता है, जो उसका संबोध्य है, उस तक वह कुछ पहुंचाना चाहता है. वह व्यवहार जो का त्यों अपने आप में जो है वो तो है, लेकिन वह व्यवहार वहीं तक नहीं रहता है, वह कम्युनिकेट भी करता है. इसके क्या परिणाम होते हैं आप देखते हैं. आप देखते हैं कि रैलियां होती हैं, लोग जीत जाते हैं, लोग मंत्री प्रधानमंत्री हो जाते हैं. क्या कम्युनिकेट करता है उनका व्यवहार. और ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप किसी व्यक्ति को देख करके ही नाना प्रकार के विशेषण उसको लगा देते हैं कि वो बेईमान है, कि अच्छा है, कि बुरा है, विश्वसनीय है, कि केवल देख करके. वो सत्य नहीं है ये तो अलग बात हुई, लेकिन आप देख करके जो कम्युनिकेशन, जो इंगित आपको मिला, उसके आधार पर आपका व्यवहार उसके प्रति होगा. अगली जो महत्व की बात है वो है कि repertoire of knowledge and behavior has been appropriated from the interpersonal world. कि जो ज्ञान और व्यवहार है वह हमारे सामाजिक परिवेश में उसकी काट छांट होती है, व्याख्या होती है, परिष्कार होता है, परिवर्तन होता है, उसको एक रूप दिया जाता है. अब आजकल अगर कहीं आपने किसी से जबरदस्ती हाथ मिलाने की कोशिश की तो वह आपको अपना दुश्मन मानेगा कि आप उसको कोरोना वायरस देना चाहते हैं. शायद तुरंत वह दूरी बनाना चाहेगा. आपके प्रेम के प्रकाशन की व्याख्या अब दूसरे ढंग से हो रही है. यदि आप दूरी बनाए हुए हैं तो उसको प्रेम अब माना जाएगा, निकटता को अब प्रेम नहीं माना जाएगा. आज की परिस्थिति है कोरोना वायरस का जो ये पेंडेमिक है, महामारी है, उसमें सारा का सारा अर्थ जो है वह बदल गया. तो ज्ञान और व्यवहार की व्याख्या जो है हमारे अपने सामाजिक परिवेश के द्वारा परिष्कृत होती है, उसको नया रूप दिया जाता है. केवल उसकी सूची आप बना करके रख दे तो उससे काम नहीं चलेगा.
लॉजिकल इम्पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्जर्वर इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव। यह एक बड़ी मजेदार बात है कि क्या ऑब्जर्वर इंडिपेंडेंट प्रेक्षक दृष्टा के बिना दृश्य का क्या मतलब है? क्या दृश्य की उपस्थिति दृष्टा के अभाव में संभव है? कल्पना ही उसकी नहीं हो सकती है। दृश्य का अर्थ ही हुआ कि वहां दृष्टा होगा। दृष्टा के अभाव में दृश्य अकल्पनीय है, उसकी सारी बात ही व्यर्थ है। विद्यार्थी के बिना अध्यापक और अध्यापक के बिना विद्यार्थी, पुस्तक के बिना पाठक, पाठक के बिना ये सब तो इंटरडिपेंडेंट है। अगला वाक्य पढ़िए, सब्जेक्ट डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट सब्जेक्ट। अरे कोई वक्ता अगर है तो वक्ता का अर्थ हुआ कि श्रोता भी होगा, और श्रोता का अर्थ है कि कोई वक्ता भी होगा। वक्ता पर श्रोता निर्भर है, श्रोता पर वक्ता निर्भर है। अध्यापक पर विद्यार्थी, विद्यार्थी पर अध्यापक। विद्यार्थी की परिभाषा में ही निहित है कि कोई पढ़ाने वाला है, तभी तो ये विद्यार्थी है। तो जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, जिस समाज में हम रहे हैं, जिस संस्कृति में हम रह रहे हैं, वहां की वस्तुओं का स्वरूप ही इस प्रकार का है, उसकी रचना ही इस प्रकार की है। कोई भी स्वतंत्र रूप से परिभाषित नहीं हो सकता, न विद्यार्थी, न अध्यापक, न श्रोता, न वक्ता, क्योंकि वस्तुएं हैं व्यक्ति से और व्यक्ति वस्तु से, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उनकी स्वतंत्र सत्ता कोई है ही नहीं है तो उसका कोई अर्थ नहीं है। तो इस तरह के परस्पर निर्भर जगत में किसी स्वतंत्र वस्तु की कल्पना करना, सामाजिक व्यवहार की कल्पना करना, उसकी समझ को प्रस्तुत करना, चाहे वो नैतिकता हो, मित्रता हो, सहयोग हो, संघर्ष हो, कोई भी तत्व आप ले लीजिए, उसको आप दो खांचों में नहीं बांट सकते। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, उन दोनों के ऊपर ही आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी वह समझ में आएगा कि इसकी क्या विशेषता है। We are living in a world where objects are dependent on subjects and subjects are dependent on objects। जो हमारे सामाजिक जगत का आकार प्रकार है, उसमें जिस तरह की घटनाएं होती हैं, उनमें एक दूसरे से निरपेक्ष रूप में तो आप कुछ समझ ही नहीं सकते। समझते हैं तो बड़ी ही वो नकली समझ होगी। हमको इन पर ध्यान देना होगा यदि हम वास्तविकता को ग्रहण करना चाहते हैं। पोस्ट पॉजिटिविस्ट के अनेक रूप हैं, उनकी व्याख्या मैं नहीं करूंगा। उनका जो एक प्रतिनिधि प्रभाव है, जो एक नई धारा विकसित हो रही है, जिसका प्रयोग पहले भी था, अब उसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है, वह है गुणात्मक शोध। जो मात्रात्मक शोध था, जो क्वांटिटेटिव स्टैटिस्टिकल पद्धति है, वह पॉजिटिविस्ट दृष्टि का आप उसकी देन कह लीजिए, कंट्रीब्यूशन कह लीजिए, योगदान कह लीजिए। लेकिन अब दृष्टि में परिवर्तन हो रहा है और अब देखा जा रहा है कि हम क्वालिटेटिव रिसर्च की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं क्वालिटेटिव रिसर्च की जो नई परंपरा है, जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट दृष्टि की परंपरा है, जो अधिक मानवोचित या मानव समाज के लिए जो उपयुक्त पद्धति हो सकती है, उधर हम आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे।
तो पैराडाइम की दृष्टि से यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन कहा जा सकता है, क्योंकि अब हमारी दृष्टि निरपेक्ष दृष्टि नहीं है, अर्थ मीनिंग से मुक्त नहीं है, भाषा से मुक्त नहीं है, प्रक्रिया से मुक्त नहीं है, एक विधि पर ही आधारित नहीं है। यह अर्थ की तलाश करने वाली है, यह संदर्भ को महत्व देने वाली है। यह जो शोध की पद्धति है, यह जो पैराडाइम है, वह एक व्यापक रूप में क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम का लीजिए, रिसर्च मेथड का लीजिए, उधर हमारा ध्यान जा रहा है। हम चाहते हैं कि हम उसके विषय में चर्चा करें। व्हाट इज क्वालिटेटिव रिसर्च? क्वालिटेटिव रिसर्च का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है जब हम उसे क्वांटिटेटिव के सामने रख करके देखते हैं, जब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा इसमें क्या है, कौन सी नई बातें हैं, किनका लाभ हम ले सकते हैं, और हमारे समग्र अध्ययन की दृष्टि से ये हमको किस प्रकार एक परिपक्वता प्रदान करने में सहायक हो सकते हैं। आइए देखें कि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है। हम लोग क्वालिटी शब्द से तो बहुत परिचित हैं। व्यापक रूप से हम कहते हैं कि जीवन में गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ बड़ी महत्वपूर्ण है, और हम हर जगह क्वालिटी की तलाश करना चाहते हैं। चाहे सब्जी खरीदनी हो तो उसकी भी क्वालिटी देखते हैं, कपड़े की तो क्वालिटी देखते ही, हर चीज की क्वालिटी देखते हैं। क्वालिटी आखिर है क्या? कठिन विषय है। क्वालिटी refers to distinctive, essential attributes, हमारे अनुभव, हमारे व्यवहार का जो वास्तविक पक्ष है, जो उसकी छाप है, जो उसकी अद्वितीयता है, जिसमें उसका होना दिखाई पड़ता है। जैसे पानी ठंडा होता है, शीतल होता है, तो वो उसकी क्वालिटी हुई, एट्रीब्यूट हुआ। संस्कृत में उसको धर्म कहते हैं, जो उसका गुण है। और दूसरी ओर आग जो है, गर्म है, ठंडा के ठीक विपरीत है, उसकी क्वालिटी दूसरी है। शीत और ताप, हॉट एंड कोल्ड। तो ये जो वैशिष्ट्य है किसी पदार्थ का, चाहे वो अनुभव का हो, चाहे वो व्यवहार का हो, उसको कैसे ग्रहण किया जाए। वस्तुतः यह स्वाभाविक रूप में कोई भी घटना, व्यवहार या अनुभव हमारे सामने उपस्थित होती है, उसको उस रूप में अगर आप ग्रहण करें तो आपकी इसकी क्वालिटी ज्ञात होगी। You will come closer to the quality of that experience or action or event. Now, a focus on quality requires active engagement of the researcher. ऐसा नहीं कि आपने प्रश्नावली दे दी और उसने उत्तर दे दिया, है? हो गया आपका काम? नहीं। क्वालिटेटिव रिसर्च में जो शोधकर्ता होता है वही असली इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि मूलतः इस प्रकार का जो शोध होता है वह एक रिफ्लेक्टिव है। रिफ्लेक्टिव मतलब आप उसको देख करके उसके बारे में स्वयं विचार करते हैं, इसका क्या अर्थ है, उसकी व्याख्या करते हैं। इट इज रिफ्लेक्टिव, इट इज इंटरप्रेटिव, इट इज डिस्क्रिप्टिव।
reflexive effort to describe and understand actual instances of human action. ये नकली व्यवहार का अध्ययन नहीं है, यह व्यवहार या घटना या अनुभव जिस रूप में घटित हो रहा है उसको उसी रूप में आप देखें, अनुभव करें, व्याख्या करें उसकी। और दूसरी बात आप देखिए, यहाँ आगे लिखा हुआ है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर आप अपनी दृष्टि से नहीं देखते हैं, आप जो पार्टिसिपेंट है उसकी दृष्टि से आप देखते हैं। अर्थात गरीबी का अध्ययन अगर आप कर रहे हैं तो गरीब की दृष्टि से गरीबी का अध्ययन आप करें तो यह क्वालिटेटिव रिसर्च होगा। ध्यान दीजिए इसके ऊपर। उस गरीब के लिए गरीबी का क्या अर्थ है, किस तरह वह उसका अनुभव करता है। आप पहले उस गरीब की स्थिति को पहचानिए, उसकी दृष्टि को देखिए। आपकी अपनी आरोपित दृष्टि जो शोधकर्ता की है वह प्रामाणिक नहीं है। तो जिस व्यक्ति का यह अनुभव है उसके अनुरूप आप पहले होइए। कठिन काम है ये। पर्सपेक्टिव ऑफ द पार्टिसिपेंट हु आर लिविंग थ्रू अ पर्टिकुलर सिचुएशन। तो जो हमारे प्रतिभागी हैं, रिस्पोंडेंट हैं, पार्टिसिपेंट हैं, सब्जेक्ट हैं, जिनके ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं, उनकी दृष्टि क्या है उस घटना के प्रति, उस अनुभव के प्रति। अगर यह संवेदना हम में आती है तब तो हम क्वालिटेटिव रिसर्चर हैं, मगर अपना ही अगर उसके ऊपर आरोपित कर रहे हैं तब आप क्वालिटेटिव रिसर्चर नहीं है। तो जैसा कि हमने पहले भी स्लाइड में रखा था कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाई, क्यों है ये, नहीं, इट एड्रेसेस अरे ये क्या है, कब यह शुरू हुआ और कैसे ये घटित हुआ। जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वह इसकी अर्थात एक कॉन्टेक्स्ट में स्थापित, परिस्थिति में स्थापित एक प्रक्रिया का और प्रतिभागी की क्या दृष्टि है उसका अनुसरण करते हुए यह अध्ययन किया जाता है। अगर इसको दूसरे शब्द में कहा जाए तो जो व्यक्तियों का अनुभव है, जो उनका लिव्ड एक्सपीरियंस है, उसकी प्रामाणिक तलाश, उसकी जो विशेषताएं हैं, उसकी जो अपनी निजी विशेषताएं हैं, उनको यदि हम ग्रहण कर पाते हैं तो हमारी दृष्टि क्वालिटेटिव रिसर्चर की होगी। इट फोकसेस ऑन एक्चुअल इंस्टेंसेस ऑफ ह्यूमन एक्शन एंड एक्सपीरियंस। हमारे एक विद्यार्थी मित्र भी कह लीजिए, हमारे साथ उन्होंने पीएचडी किया, वो एक आईआईटी में प्रोफेसर है, दिल्ली विश्वविद्यालय में पीएचडी की उन्होंने हमारे साथ। आपको याद है ना कि बहुत पहले एक बार 26 जनवरी के दिन भुज में बड़ा भारी भूकंप आया था और उसने उस व्यक्ति को बड़ा प्रभावित किया। उसने कहा कि मैं सर इन लोगों के पीड़ा, इनके दुख और क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, इसका अध्ययन करना चाहता हूं। मैंने कहा बड़ा अच्छा है। और वह गए, वहां पर एक गांव में रहे, गुजराती भी सीखी, उन लोगों को देखा, उन लोगों के साथ जिया और यह देखने की कोशिश की कि उनकी पीड़ा और कष्ट से कैसे वह जुड़ रहे हैं और कैसे पार पाने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी ऐसी संवेदना का अध्ययन कैसे किया जाए। बहुत बढ़िया
कार्य उन्होंने किया, यह क्वालिटेटिव रिसर्च था। इथनोग्राफी का उपयोग उन्होंने किया। तो आप इस प्रकार का अनुभव करने के लिए आपको अपनी लेबोरेटरी में नहीं, प्रश्नावली कुछ लोगों में बांट देने से तो नहीं काम चलेगा। जब डिस्टिंक्टिव और एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक उनके अनुभव को आप प्रामाणिक रूप से प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो आपको इस प्रकार का कार्य करना पड़ेगा। एक्चुअल इंस्टेंसेस आपको देखने पड़ेंगे, उनकी अपनी दृष्टि का उपयोग करना पड़ेगा। सब्जेक्टिविटी इज बोथ। आप ध्यान दीजिए कि वह सब्जेक्टिविटी को पकड़ना भी चाहते हैं और सब्जेक्टिविटी के माध्यम से, और इसके लिए जो रिसर्चर है, जो शोध करता है, उसकी जो अर्थ ग्रहण करने की, सेंस मेकिंग की समझ जो है, वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण उसकी शक्ति होती है। ध्यान दीजिए, और यह बहुत महत्वपूर्ण है। आपत्तियां उठती हैं कि भैया यह तो साइंटिफिक ही नहीं है, जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें नंबर नहीं है, स्टैटिस्टिक्स नहीं है, गणित नहीं लगेगा, सांख्यिकी नहीं लगेगा। तो ऐसी स्थिति में ये प्रश्न उठता है कि सब्जेक्टिविटी का अध्ययन करना और उस अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष निकालना, जीवन की वास्तविकता का अध्ययन करना एक गंभीर कार्य है, और उसके लिए क्वालिटेटिव अध्ययन का उपयोग होना चाहिए। यह उतना ही एम्पिरिकल है जितना कोई भी, और सब्जेक्टिविटी का यहाँ आदर किया जाता है, वास्तविक जीवन और अनुभूतियों का अध्ययन किया जाता है, और हम अनुभव की जो विशेषता है उसके वास्तविक स्वरूप को ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। मैं समझता हूँ कि यह एक प्रकार का प्रस्थान बिंदु है, एक डिपार्चर है, जो परंपरागत हमारी शोध की पद्धति है, उसके आगे हम बढ़ते हैं। मैं अपनी बात यहीं पर आज समाप्त करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि हम आज के व्याख्यान में यह देखने की कोशिश कर रहे थे कि हमारी जो परंपरागत शोध की पद्धति है वह आधारभूत रूप से किन किन विशेषताओं, किन किन प्रक्रियाओं पर बल देती है, और जो नए परिवर्तन हो रहे हैं, पैराडाइम में परिवर्तन हो रहे हैं, वह हमको किस प्रकार आह्वान दे रहे हैं कि हम अपनी दृष्टि को कैसे व्यापक करें। मुझे आपके प्रश्नों, आपकी टिप्पणियों का इंतजार है। मैं चाहूँगा कि आप अपने उत्सुकता को साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. So we have questions from some questions from participants. Yes. The first question is qualitative research positivist approach? Qualitative research is post-positivist approach. It is not positivist approach. Okay, sir. Thank you. The second question was asking from Priya. What are relationship between logical positivism with positivist and post-positivist? Logical positivism developed within the tradition of positivism, and it is a contribution by Karl Popper, and he wanted to improve the positivist position, and he tried to provide a possibility, but after all, it does not go beyond the positivist perspective, and it again
offers a kind of approach which is improvement about general positivist approach and falsification, that you can't confirm a theory, but you can falsify. And that is the approach which was nurtured by Popper and his followers. But again, it does not go beyond the positivist approach in the sense that it maintains the significance of understanding external independent reality and maintaining the position that there is observer independent reality, and that is a limitation of this approach. Sir, third is from Dr. Sunita Singh. Sunita Singh want to know how social research can be done with positivist approach. How social research can be done with positivist approach? I think the research tradition is primarily rooted in positivist approach. Whatever research she has understood in her studies, or most of the studies, they follow the positivist approach, where you develop hypothesis, you test that hypothesis, you use statistics, you draw conclusions about that. I mean, that is the existing procedure, that is the existing methodology. I don't think that it's new. The post-positivist is new. The positivist is the tradition which is being followed. Thank you, sir. डॉक्टर आविष्कार जानना चाह रहे हैं सर कि शोध के क्षेत्र में गुणवत्ता में कमी क्यों आ गई, शोध में नकल की प्रवृत्ति क्यों बढ़ गई? बहुत अच्छा प्रश्न है और इसका एक उत्तर नहीं है। मनुष्य की बहुत सारी कमियां हैं और बहुत सारी उसकी विवशताएं हैं। नकल करना ठीक नहीं है, ये आदमी जानता है, उसके बाद भी नकल करता है। और जो तमाम तरह की त्रुटियां शोध में आती हैं, उनके पीछे कहीं न कहीं मैं यही कहूँगा कि आदमी शॉर्टकट का उपयोग करना चाहता है और उससे जो परिणाम हैं उनकी प्रामाणिकता में बाधा आती है और सत्य का, यथार्थ का जो ज्ञान है वह धूमिल होता है और उससे बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आती हैं। आप मान लीजिए कि रक्त का परीक्षण करा रहे हैं, ब्लड टेस्ट करा रहे हैं और उसमें हेमोग्लोबिन आ गया आपका कि 5 वैल्यू उसकी आई और आप तो कहे अरे बाप रे, तो बहुत कम है। पता चला कि वो टेस्ट ही गलत हुआ था, केमिकल पुराना था, तमाम सारे कारण हो सकते हैं। बिना टेस्ट किए ही कुछ लिख दिया, वास्तविकता कुछ और थी। कई बार ऐसा होता है, इसलिए आप दूसरे से भी परीक्षा कराते हैं कई बार, जब आपको ऐसा भय होता है कि भाई कहीं गड़बड़ ना हो। तो उसी तरह से मैं समय नहीं है कि उन त्रुटियों और उन बाधाओं, आपकी बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं और उन अपेक्षाओं से इतना ज़्यादा ग्रस्त होते हैं कि आप उसी तरह का परिणाम देखना चाहते हैं। परिणाम कुछ होता है लेकिन आप देखना कुछ चाहते हैं, तो ये भी एक उसका पक्ष होता है। तो क्यों नकल हो रही है, अब मैं अधिक इस पर चर्चा अभी नहीं करूँगा, बाद में फिर अवसर मिलेगा तो चर्चा करूँगा। लेकिन जो मनुष्य की बहुत सारी कमियां जो हैं, चाहे वो स्वाभाविक कमियां हों प्रेक्षण के अंतर्गत जो पैदा हो जाती हैं, ऑब्जर्वेशन के अंदर जो पैदा होती हैं, एक्सपेरिमेंटर या जो ऑब्जर्वर है या जो शोध करता है उसकी बहुत सारी आशाएं होती हैं, प्रत्याशाएं होती हैं और वे प्रत्याशाएं भी प्रभावित करती हैं। अब कैसे उससे बचा जाए यह विचार का प्रश्न है। तो नकल क्यों होती है,
अब आप शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, अपना काम जल्दी से खत्म करना चाहते हैं, तमाम सारे कारण उसके होते, कोई उसके एक कारण नहीं है। लेकिन महत्व की बात यह है कि नकल नहीं होनी चाहिए। अगर आप सत्य पाना चाहते हैं, यथार्थ का ज्ञान करना चाहते हैं, शोध आपका ठीक हो, इसके लिए आवश्यक है कि उससे बचा जाए, और उसके तरीके हैं, उन पर ध्यान देना आवश्यक है। So one last question: how to improve objectives in research? देखिए, ये प्रश्न थोड़ा स्पष्ट नहीं है। शोध के ऑब्जेक्टिव, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स को कैसे इम्प्रूव किया जाए? Now, actually, it may refer to improving the objectives of research in totality. That is a different question. And when you want to improve the objectivity in a particular research, that becomes a different question. For example, you are conducting a research, any kind of research, positivist or post-positivist, qualitative, non-qualitative, quantitative. If you want to improve objectives, ये देखिए स्पष्ट, ऑब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिव दोनों अलग अलग बातें हैं। तो ऑब्जेक्टिव तो ये हुआ कि एक शोध का क्या ऑब्जेक्टिव है, उसका गोल क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। आई एम नॉट क्लियर, व्हाट इज योर कंसर्न। ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियर होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीवेबल होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव जो है उसको इम्प्रूव अगर करना है, रिसर्च एक जो शोध आप कर रहे हैं, उसके जो ऑब्जेक्टिव आपने बनाए हैं, वो ऑब्जेक्टिव किस प्रकार के हैं। अगर शोध के ऑब्जेक्टिव को इम्प्रूव करने की बात है, तो वहां पर इसका ये अर्थ हुआ कि आपके जो मेजर्स हैं, जो टूल्स हैं, जिस विधि का उपयोग कर रहे हैं, उसको कैसे व्यवस्थित किया जाए, उसकी गुणवत्ता कैसे सुधारा जाए, तब आप ऑब्जेक्टिव में सुधार ला सकते हैं। आपने ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, उन ऑब्जेक्टिव को ठीक करना ये अलग प्रश्न है। तो ये प्रश्न कई स्तरों पर है। शोध का ऑब्जेक्टिव ज्ञान क्यों किया जाता है, ज्ञान को उपयोगी कैसे बनाया जाए, ये भी एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो सकता है। तो किस स्तर पर आप शोध के ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, ये बहुत स्पष्ट नहीं है। जी सर। ओके सर, आई थिंक जो जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था उनको अपने आंसर्स मिल गए हैं। नाउ आई एम गोइंग टुवर्ड्स द vote of thanks. Thank you very much, sir, for such a nice lecture. It was our privilege to listen you, sir. You covered almost all the aspects of related to research, like qualitative research. You have talked about positivist and post-positivist, and the difference between positivist and post-positivist were explained very nicely, sir. Thank you very much for giving us time from your busy schedule, sir. Thank you once again, sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir, and pranam, sir. Thank you, sir, for it. Thank you, thank you. Okay, sir. Pranam, sir. Pranam, sir. प्रणाम सर। सचिन, प्रणाम। हाँ जी सर, जी सर। आप अनाउंस कर दीजिए कि अब वहां पे वीडियो है और हम फिर कल मिलेंगे एक बार फिर। Dear participants, one announcement I want to make here. The next lecture will be a recorded video, which will be available on orp.rcmoves.in. So you can access from your portal and see the video, and you can do your assignment accordingly. Thank you. Thank you.